दुश्मन है ये, कोई सौतन है ये, बड़ी उलझन है ये, यारों के भेस में सबकी तो दुश्मन है ये। दौलत थी उड़ गई, दौलत थी उड़ गई, शोहरत थी मुड़ गई। मैं हूं इस धारावाहिक का सूत्रधार मुकेश ऋषि। नमस्कार दोस्तों, इस धारावाहिक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। धारावाहिक उद्यान ग्रामीण भारत का दर्शन है, जिसमें तकनीकी विकास के साथ साथ ग्रामीण जीवन शैली का चित्रण है और इसके साथ साथ एक सहज, सरल, दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी है। तो लीजिए, प्रस्तुत है धारावाहिक उद्यान की प्रथम कड़ी। रुक्मणी, इनसे कह दो कि इस घर में मैं किसी भी प्रकार का कोई तमाशा नहीं देखना चाहता हूं। वसुंधरा को भीतर ले जाओ और अब शादी के बाद ही वसुंधरा इस घर से बाहर कदम रखेगी। ठाकुर प्रताप सिंह जी, हम चले तो जाएंगे ही, लेकिन खाली हाथ नहीं। मैं अपने बहू को अपने साथ लेकर जाऊंगी। किस बात की नाराजगी है हमसे? क्या गलती हो गई हमसे? मैं मानती हूं आप मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर मेरे देवर जी के घर गए थे। मेरे देवर ने आपके साथ कोई बदतमीजी की नहीं ना? मेरी देवरानी की बदतमीजी की वजह से आप नाराज होकर आप हमें और हमारे बच्चों को सजा दे रहे हैं। मेरे जिंदगी में कुछ उसूल हैं, कुछ सिद्धांत हैं और अपनी इज्जत की खातिर मैं उन्हें दांव पर नहीं लगा सकता। मैं इस समाज में रह रहा हूं और समाज में रहने के कुछ कायदे और कानून होते हैं। समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए अपनी बेटी की खुशियों की बलि देने के लिए तैयार हैं आप? हाँ, मैं अपनी बेटी की बलि चढ़ाऊं या उसकी खुशियां बांटूं, मुझे किसी की नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। The birth of BHEL was part of Pandit Jawaharlal Nehru's vision for indigenous power generation equipment manufacturing, leading to complete self-reliance in the field of power. Today, BHEL has become a pivot in the areas of power generation, transmission, industrial products and transportation business. Change and adaptation have been the key components of BHEL's growth over the years. At BHEL, challenges have been converted into opportunities. The early 60s were the learning curve for BHEL. Self-reliance and nation building were the buzzwords for the company, still in its infancy. It was a challenge to develop indigenous technical expertise and build manufacturing facilities. The goal was to initiate manufacturing with technology from collaborators. The 70s saw the company consolidating and integrating itself as a corporate entity. The business focus transformed from manufacturing to engineering and R&D. In the 80s, BHEL, already a name to reckon with in the country, oriented itself for growth and profitability while meeting increased customer expectations amidst international competition. And the last decade of the millennium was the phase of innovation and business solutions for the company. It was also the decade of new challenges. As global players, hitherto, BHEL's technology providers and collaborators turned competitors in the new domestic business environment due to economic liberalization. The first decade of the 21st century
saw a transformation in the power sector in the country. BHEL focused its attention on introduction of new technologies and sustaining relationships with collaborators, prudent supply chain management and shorter schedules. A dream fulfilled and a vision realized. Not only has BHEL lived up to its original mandate, but far surpassed expectations by driving India's infrastructural growth. The company has an unparalleled track record of powering progress and brightening lives. Today, 3 out of 4 homes in India are lit by power generated by BHEL equipment. The company has also become India's industrial ambassador to the world, with a presence in over 70 countries across 6 continents. With its unmatched range of over 180 state-of-the-art products, BHEL meets the requirements of core sectors like power, industry, transportation, transmission, oil and gas, defense and renewable energy. आज हम टारमैक पर LCA की टेस्ट फ्लाइट की 526वीं उड़ान को देखने के लिए खड़े हैं और ये इसके विकास कार्यक्रम का एक शानदार नमूना है। कहीं मैं बहरा ना हो जाऊं। LCA यानी भारत का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट छोटा, हल्का और हरफन मौला है। ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान भारतीय सूझबूझ और विकास का एक शानदार नमूना है। इसके प्रोटोटाइप मॉडल नंबर 3 को तैयार करने में आप देख सकते हैं कि कितना कंपोजिट पदार्थ इस्तेमाल किया जा रहा है और करीब 90% सतह इसी पदार्थ से बनी है। मास्टर शेफ की तरह ही इसका हर हिस्सा अवन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके हर हिस्से का जबरदस्त परीक्षण होता है, तभी ये जोड़ने के लिए भेजा जाता है। इतना शानदार सुपरसोनिक विमान बनाने के लिए ढेर सारे सुपरसोनिक परीक्षण किए जाएंगे, तभी ये विमान उड़ने लायक होगा। LCA के विकास के दौरान विंड टनल में इसे 7000 बार ले जाया गया। विंड टनल डिजाइन और विकास के चरण का जरूरी हिस्सा है और इतने अहम विमान की एरोडायनेमिक्स को सही करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। During the 80s, scientists from the Lucknow-based Central Drug Research Institute chanced upon a chemical in the Google gum, known as Gugulipid. The chemical was run through trials. The outcome was stunning. Gugulipid lowered the high levels of blood cholesterol and triglycerides in humans. Probing this chemical, CSIR scientists made a startling discovery.
Gugulipid worked wonders owing to the presence of an active compound called Gugulsterones. Now Gugulipid hit the market as Guglip. After that, Indian scientists focused their attention on malaria. Malaria is still a cause of worry. Every year it claims 1.5 to 3 million lives worldwide. The bug that causes malignant malaria is a fugitive. It plays hide and seek with anti-malaria drugs like chloroquine. While searching for a remedy, the CSIR lab in Kolkata has made an exciting discovery. This lab isolated a potential anti-cancer compound from a special variety of beetle leaves. CSIR scientists use tissue culture to grow medicinal plants and their various parts in labs. Adopting callus culture, a special type of tissue culture, the CSIR lab in Pune has churned out enophilolides, an anti-HIV compound from Sultana Champa. This lab has also developed tissue culture techniques to grow various parts and embryos of different medicinal plants like kokum, jatimad, aswagandh and gudmar. दुनिया एक भीड़ है, कहीं आप इस भीड़ में खो तो नहीं रहे। भारत सरकार आपके लिए लाई है आधार, जो बनेगा आपकी पहचान का प्रमाण। सबको अपनी पहचान पाने का पूरा है अधिकार और भारत सरकार अपने सभी नागरिकों को दे रही है ये अधिकार। तो भीड़ में रहिए लेकिन अपनी पहचान के साथ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से जनहित में जारी। विवाह संपन्न हुआ। ठहरिए पंडित जी, एक फेरा और। 8वां फेरा? ये कौन सा फेरा है? आज हम दोनों एक दूसरे को ये वचन देंगे कि वित्तीय सेवाओं से जुड़ा कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़े बिना कभी साइन नहीं करेंगे, ताकि भविष्य में परेशानियों का सामना न करना पड़े। जागो ग्राहक जागो। खाएगा? टेस्टी है। अच्छा, तू नॉनवेज कब से हो गया? नॉनवेज? मैं तो वेज ही हूँ। वेज है तो नॉनवेज क्यों खा रहा है? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स खरीदते समय ग्रीन मार्क जरूर देखें। साथ ही बेस्ट बिफोर, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू जरूर चेक करें। जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। हर दूसरे मरीज की ये शिकायत है कि दवाइयाँ महंगी हो गई हैं और आम मरीजों की ये धारणा है कि सस्ती दवाइयाँ असर नहीं करती, जबकि ऐसा नहीं है। एक ही बीमारी के लिए एक ही सॉल्ट के कॉम्पोजिशन वाली दवाइयाँ जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, उनकी कीमतों में बड़ा फर्क होता है। इसीलिए इलाज कराते समय अपने डॉक्टर से जरूर कहें कि वो सस्ती और असरदार दवा ही लिखें। जब अच्छी और असरदार दवाइयाँ सस्ते दामों में मिलती हैं तो महंगी क्यों लें? जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। हम लोगों ने ज्यादा फायदे के चक्कर में कातिल तो कर लिया, पर इसे देख के डर लग रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में जाकर सबको सच बता दूं? पर कहीं मुझे सजा हो गई तो आखिर करूं तो क्या करूं? सर डरे नहीं, सीसीआई जाकर पूरी जानकारी दे दीजिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मामले की जांच कर कार्टेल में शामिल व्यापारियों, विक्रेताओं या निर्माताओं द्वारा खुलासा एवं सहयोग करने पर लीनियंसी प्रोग्राम के तहत रियायत बरतती है। और अधिक जानकारी के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की वेबसाइट लॉग ऑन करें www.cci.gov.in।